Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now I will be listening to an album by Seedhe Maut. Yes, this is their mixtape N और न, मतलब इंग्लिश में N and हिंदी में न. So इसमें से there are 9 tracks in this album and I have already reacted to 2, which is Namaste and Nanchaku, and I get why it is N because सारे गाने जो है वो न से start होते हैं. So I'm really excited to check this mixtape out. So I'll be reacting to 7 songs जो नहीं मैंने सुने हैं, starting with No Enema. That's the name of the song, and इसमें 3 artists हैं, Seedhe Maut, Foreign Beggars and Says on the Beat. So okay, let us begin because there are 7 songs and then I'll be sharing my thoughts and all of that. Pause करके I'll first listen में I'll not pause. I just want to check the song out. If I want to re-listen to it, I'll do that. Otherwise we'll move on to the next song. So yes, let us begin. I'll put the timestamps for every song in the description so you can just watch this at one go, or you can just go to your favorite song. So let us begin this album listening. Really excited to listen to their songs because I don't know, I think I've been really impressed. In the 2 songs only, they have really impressed me. Specifically, like lyrics तो अब थोड़ा मैं ना थोड़ा सा immune हो गई हूँ because I know that lyrically what to expect in hip hop technically, but where they really impressed me is the way they throw in their words. उनका जो flow है and specifically उनका जो flow switch है. So that's really impressive. So yes, let us listen to No Enema. और ये बाकी दोनों जो artist है, I have not listened to them, so it'll be the first time. Okay. Okay. Sounds. Says on the beat, boy. आसानी से टूटे ये पापड़ है बगल में It's a lyric तो video. भी चालू है. सारा सा चौड़े में खड़ा तो होके देख, आगे का मुझे नहीं मालूम है. अखाड़े में आके देख, तुम्हारे खराटे में मारू कराटे के. मुंह पे स्टैश है, उदे पे खंबा ऑन कर, तू कर पराठे पे सीन ऑन. अकड़ बकड़ बम में जानी लेना पंगे, खाली पीली काले पीले हो गए पीले खड़े ना के प्योर पहली पीली. मैंने 100 का नोट देगा छोड़ देगा भाई, एक मौका दे देगा फोड़ तेरा भाई. सब चाहते रहना तुझसे दूर, तभी काटे तेरे बाल गलत तेरा नहीं, यहाँ भटकने का नहीं. ये सर्कल काफी ज्यादा टाइट, मैं बोला मेरा जाम कटकने का नहीं. उतारू तेरी सारी छाई, मैं किसी में साई देनी होती बेटी तो मैं दूरी रखूं, तभी मैं ना ज्यादा करूं बात. कभी लगी बात लगे हाथ लगे मेरे रास्ते, बड़े बात आज मेरा स्पॉट हाथ छोड़े. दिल्ली घुसते तेरा भाई प्लान, आंखें लाल मेरी साइक्लोप्स. इनको ज्यादा फुका दो तो पूछे मुझसे पैरानॉइड हो के भाई काय कॉप्स. सीधी बात है तेरी बातों पे रुचि ना किसी को, तो आके यहाँ बुन मत चाट. एक बार बोला दूर रहे, ना बोलना पड़े मुझे दूसरी बार तो झाटू. आजा मेरे साथ तुझे सर दर्द दूं, तेरा बाप कौन मुझे मतलब नहीं. हरे राम हरकत अफलातून, करे हम राज तुझे कोई शक नहीं. मैं संकट हूँ, बोला मुझे क्या ओए कम वक्त तू है मेरा कानून अरे संसद नहीं. बड़ी बातचीत जैसे Shit gets realer as I get older. Sang far just gets colder. 2-2 chip all on my shoulder. Kids keep acting old cobra. I ain't trying to talk shit out, this ain't Oprah. How we doing this cause I know straw. You man must be stuck on that cold car, thinking I'ma let it slide, roller coaster. Ain't too many got hardcore like me, thinking I'ma give it to him, that's a donor. Figure I'ma keep man locked in a bag till I find me that leads to that Mona. Plotting that evil scheme, kill your dream, cleave him clean, guillotine. You're the mean, the ED you mean. You get tough just like Billie Jean. I live the dream, I make moves, I came with the team. Flow for days like a river stream, then I move just like Mr. Bean. Nowadays I twist the green to medicate, but it's hard to levitate while I bear the weight. The glare, the hate of these breads that fake and won't share the plate or share the take. That's a move I dare you mate. Me I'm your food then I'll flare the place. Trapped in room there's no air to waste. Besides I'm that goon you don't dare to chase. Got rap shook, D-Bo get that snack took. It's so clear I'm that good. Disappear man, Blackwood. Tripping, you would never catch us slipping. You would never catch man drifting. I don't know We've been who on these bliss as artists an are. infant. Turn a big man to a victim. Tripping, you would never catch us slipping. You would never catch man drifting. We've been on bliss as an infant. Turn a big man to a victim. मजबूत मैं मुंह पे नहीं कहता, खुले जब थूत तो जूस भी मुंह देता. बटन अब तू पर तू बने नेता, पर हट लूट पे छूट पे नहीं सहता. Boss 'em.
चेन मेरी कस्टम, लिखूं जैसे प्रेमचंद प्रथम, भूख जैसे कृष्णा, फ्लो जैसे मक्खन, टैप गैंग साथ पूरी सत्संग, 1 लाख के बाद नहीं कोई लखन, हाय राम ये लोग है या लसन, है उनका तेज मेरा मध्यम, पैसा तो लाश बिछे 56, गाना ड्रॉप भगे सब पीपी, फ्री फ्लो बाइट करे लीड जैसे लीची, सावधान सभी जब फ्लो ब्लो करे सीटी जैसे पीटी, लिया तूने तीरी, घर में सवरती है प्रीति वो सीधी सी लगती है, अब जरा सी माचुदा की अब करे क्या बॉस, मेरा पूरा यूथ बॉस एस, चिपकने का नहीं सरदर्दियां 56 है बॉस, सीना नहीं 56 का दिल है 75 का बॉस, कागज के पन्नों पे कलम से ग्राफिटी बॉस, किसानी नहीं करी पर है का भतेरा सॉस, बैंक में नहीं पैसा तो इंटरेस्ट में भतेरा लॉस, करूं मैं भतेरी मौज, शोज करूं भतेरे मौज, अब भी है भतेरा जोश, आंखें अजीज बातें लजीज, गायब तमीज, जादूगर जादू 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 जादूगर, आजा दिखा दे फिर एक नया जादूगर, आजा मेरे साथ तुझे सर दर्द दूं, तेरा बाप कौन मुझे मतलब नहीं, हरे राम हरकत अफलातून, करे हम राज तुझे कोई शक नहीं, मैं संकट हूँ, बोला मुझे क्या ओए कम वक्त तू, है मेरा कानून और संसद नहीं, बड़ी बातचीत जैसे अफलातून, Blackout, blackout, blackout. Bigger fancy, they won't no handout. I was in Habitat, call for the smackdown. You was in the fix, still trying to put a track out. Studio done, big mo put a track out. Back on tour, but the gang for the cash out. Back of the ends for a minute, then I'm back out. Bombay, even got a pack for the cats up. I front the break for copyright the banjo. Stash 2 bits and a girl called D'Angelo. Done the dogs, a cake for one stanza. Stacks in the Ricks, no extravaganza. Mahim Bunch get jump in the pod. Now I'm on a C-Link, trying to holler at London. Bollywood girl wanna know, so they at me. Hit him with the light, got the fuller back casually. She was like, Come to the Novo Town. Cam was like, nah, yeah, tell her go to hell. Headed back to Lobo Burrell, got my ting shotgun and she strapping the L. Fish बताओ, bottom the ball, sex दिखाओ, squad पिलाओ, गोली लगाओ, puzzle बजाओ, गोली उठाओ. Wax off, wax on, cognac, sass on, now she back in the long. She back in the good, she got me hitting this shot, she got me giving it the bigger while she singing my song. No long, PAV, no villager, POV, no cinema, PKC, no bike killer, all up in that ass, no enema. What was this freaking song? I'm sorry, it just took me to another zone. Let me stop this. Lyric wise, though, I feel so many references. Like lyric, though, I'm telling you very honestly, okay, I don't understand every reference, okay, so that's me being completely honest. And you know, जहाँ तक lyric bars की बात है, I can get what सीधे मौत the duo is trying to say, but of course जो you know, foreign beggars bars अपने बोल रहे थे, I don't know, like I can see the wordplay, but of course there would be very deeper metaphors and references which I can probably not do justice to while listening to it. Oh, I don't know what is happening in Mumbai. हाँ, तो सुबह इतनी धूप होती है और शाम को एकदम बादल गरजते हैं. Anyway, but this song, पहली बात तो the beautiful video artwork, it's so beautifully done. Love. You know what I realized? ये थोड़ा जब गाना थोड़ा सा progress हुआ ना, I was realizing कि जब भी, I don't know, I could be completely wrong, या maybe मेरा imagination है, whenever they were singing their verses and there was a flow switch, या तो font या तो कुछ ना कुछ font में या position में जो lyrics चल रहा था ना, वो change हो रहा था. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा deliberately वो किया है उसमें. The beat, it's beautiful, but you know, the beat never even changed. जब गाना स्टार्ट हुआ, I was like, okay, flow switch होगा, beat में कुछ change आएगा. There is no variation in beat, or maybe there was a variation क्योंकि first time में शायद मैंने उतना नहीं पकड़ा. But from my first listen, I don't think there was even a single variation in beat. जो इस beat से गाना start हुआ, उसी beat से गाना ख़त्म हुआ. That's what I felt completely. I'll probably give it a second listen, then I'll understand and catch maybe if there was a beat switch or not, but I don't think there was. But the flow switches were insane. Insane. And that's what I like. You know, जब नानचा को मैंने react किया था ना, that's what I really loved about them, both Calm and Encore, is the way they were switching it up their flow. और मैंने ये you know, नानचा को के reaction में भी बोला था कि जिस तरह से वो अपने words बोल रहे हैं ना, basically their cadence, when they are, you know, sort of rapping their verse, their cadence
is so incredible. They're freaking in just one. एक बार में इतना variation है in terms of the way they are throwing in their words, the way they are talking. You just feel that, you know, it's literally वो गले से नहीं आ रहा है, वो दिल से आ रहा है. I completely felt that in Nunchaku. I completely felt that. Oh my God. And I don't think it's a very easy thing to do. मैं तो कोई musical genius हूँ नहीं, but from whatever limited music that I listen to, I don't think it's a very easy thing to sort of, you know, do variety of flows in a single beat. क्योंकि जब बीट चेंज होता है या टेम्पो चेंज होता है गाने का, तो आप उसके हिसाब से फ्लो बना सकते हो अपने लिरिक्स का. बट व्हेन इट इज़ अ कांस्टेंट बीट एंड यू हैव टू एक्चुअली मेक द सॉन्ग साउंड वेरी यूनिक बाय स्विचिंग इट अप in terms of your flow and the delivery of your lines, it's not an easy thing to do. The stakes, I mean, you have to be really talented to do this, and they have just proved it. They have just done it so effortlessly. This is like effortless, and I'm not just talking about Seedhe Mauth here. जितने भी आर्टिस्ट हैं इसमें जिन्होंने अपने अपने वर्सेस गाए हैं, रैप किए हैं बेसिकली, I think all of them did the exact same thing. Because मैं वही बोल रही हूँ ना, पूरे गाने में मुझे लगा कि बीट तो चेंज हुआ ही नहीं. There is no freaking variation. It is just their voice, their cadence and their flow. यही दो चीज़ बार बार चेंज हो रहा था पूरे गाने में. And the way they made it sound so unique to my ears. Kudos. मैं lyrics के बारे में कुछ comment नहीं करना चाहती because you know when I'm not getting it, then I'm not getting it. But whatever I understood from listening to this song, it's, well, I'm totally appreciative of it. Wow, it's, you know, the weather is also saying कि भाई हाँ, ये तो मतलब सीधे मौत. I totally, you know, ये तो तीसरा गाना है. They have totally done justice to their name of their group, of their duo. It's insane, man. I loved it. I'm going to give you my preferential sort of Frankie की कौन सा मुझे गाना सबसे अच्छा लगा. My most preferred to my least preferred, because everybody's musical preferences are different. किसी को एक गाना बहुत पसंद आता है तो एक बंदे को नहीं पसंद आता है, वो वाइब नहीं करता उस गाने के साथ. So I'm going to give you my preferential ranking once I listen to the entire thing. Now we will move on to the next song, which is the third track, नाम छीन. ये गाना है. नमस्तुते is the second track. मैं already react कर चुकी हूँ उसमें. You can just find that video if you have not watched it. It's, you know, you can just go to the Desi Hip Hop playlist and you'll find the video there. So yes, let's move on to the third track, which is नाम छीन. इसका भी video है already. I think ये वाला गाना सबसे लंबा था, long duration वाला, because 3 artists थे इसमें, so this was like almost a 5-minute song, but rest of them are not. All right, let's react to नाम छीन now. नाम को छीन लेना, हाँ? Let's see what this is about. I'm pretty sure they're gonna have killer bars. Okay. हाँ भाई, गरजो बाहर, क्या करें मैं? बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे रात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम चीन. एक मिनट, मैंने तो मतलब वीडियो में इतना खो गई कि मैंने वर्ड्स ही नहीं सुना. ओके, it's like a video game format, animated. Wow. बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे रात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम चीन. बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे रात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम चीन. मेरे पहली पर चाहती नाम वो हल्लों बैठो चौकड़ी मार के 2-3 जड़े जला मेरी बात पे ध्यान आके मेरे शो की बात थी बहुत भीड़. मैंने पहले बार मैं जानता नाम उसे लगा उसे बहुत पता फिर ओ प्लीज मुझे जानती नहीं जानती काम को बस मैं क्यों करूँ वाइब का बंदोबस्त. हमेशा दोस्त पी रहे जैकी हमेशा दो टी रहे पैक में क्या उसे पसंद मेरा बैंड या ड्रिप पे हाइप का दिल या वो 6-0 बैंक में तब अलग ही सीन थे कैश के 4 साल रोहिणी से कहां से कहां आगे अबे सिद्धांत रोज खत्म हो गया फिर रोज मेरा बोर्डिंग पास का मगो चाहिए था 50 मैंने भेजा 1.5 मैं लेटा खुद के पेपर में करूं मैं बेक करी पूरी ये जेब और पार्टी करी सारे साथी भंडो के गए रोजी का पड़ोसी मेरे तंगों के सोए कोई 2
दोस्त लेकिन मैंने कभी मौके नहीं खोए किल से कैसे नहीं करी जो क्रांति जिनसे मेरे खाली लाभ से पादी बॉय बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे रात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम चीन हुए 4 साल लेकिन के नहीं पता रहता कौन सा दिन है हर दिन जैसे वीकेंड मना रहे गाने फिर मारते चिल है गाने मेरे बिल तो नहीं खाता गिल्ट है हूँ मैं बहुत इल है ये मुझको इल्म है ये गान चाटने की करते एक्टिंग तेरा भाई इनकी बनाता फिल्म है दोनों भाई मिलके बनाएंगे मिलते इस पर नोट रहे जेब मेरी चढ़ते सिर पे आकर रुकार और आके फिर ले इन रैपरों के छिलके निकाल के छिल दे अगर गेम ओवर हूँ मैं ओवर किल पेपर काम बोला बस कर तो रोक दी मारपीट लॉन्डो से घंटा नहीं लिखा जा रहा फिर बोले हमें रैपर नहीं हम मैं आर्टिस्ट बेटा तू रैपर नहीं तो डर मत तेरा भाई माइक्रोफोन पे नरभक्ष जिनके खुद के जाते सरकट उनको ही लगती कोयल कर्कश सीधे मौत सब कर रहे हैं सरकट तभी बदनाम भी सीन में काफी लेकिन कभी नहीं मांगी इजाजत तो मेरे घंटे से मांगे माफी बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम बंदे नाम चीन सवा शेर गरजे रात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो खैर बंदे क्रांति बंदे नाम चीन Oh, this has to be, my god, this has to be watched multiple times. कितना बढ़िया वीडियो है यार वो I love this. The overall packaging of this song is insane. There's so much. ये एक बार में नहीं होगा. सीधे मौत को समझना ना थोड़ा you have to really sit down and understand their perspective. Really. एक बार में नहीं होगा. But it's not possible कि you know you've listened to one song and reacted and you'll be like okay I'm done now. Move on to the next song. It's not possible with these guys. It's not possible with these guys. नमस्तुते तो मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी मुझे वो गाने का मतलब मैंने अभी तक उसका रूह नहीं पकड़ा अभी तक उस गाने का. You know, even if it's such a banger and I've listened to it multiple times, but I still feel that no, I've still not got it. I've still not got it. I just completely feel that. And this is, now I totally believe it's really impossible to understand them immediately. You have to really sit down and, you know, try and get into their heads and understand, okay, overall perspective आपको समझ आ जाएगा, but to really get into all these, you know, their mindset, their bars, the mindset behind which they write their bars, it's very different. It's very different. About this video, firstly, so freaking creative. जो मैसेज वो देना चाहते हैं इस गाने से, लिरिक्स में तो है ही है, बट वो वीडियो में भी है. You know, they've sort of made it easy for people like me who will not get all the references probably. हाँ, थोड़े दिमाग से पैदल वाले लोग, you know, someone like me who's still in the learning phase कि चलो तुमको वीडियो से समझ आ जाएगा अगर गाना नहीं समझ आया तो. So it's so beautifully done, this entire video game format where both of them, Calm and Encore, they are moving forward. You know, it's like जैसे वीडियो गेम में होता है, यू नो, लेवल अप करने के लिए यू हैव टू, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फर्स्ट डिफीट द विलन ऑफ द फर्स्ट लेवल और डिफीट द एंटाई जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा है, फिर आप लेवल अप करते हो एंड देन टू विन द फाइनल बैटल ऑफ कोर्स यू हैव टू, यू नो, face the big villain, the big baddie, huh? So that's what exactly has been shown here, that every time both of them are crossing different hurdles, and at the end the mutant, you know, at the final battle is on the stage, like a rap battle. So it's on the stage and you have your entire audience, and I love at the end जब वो mutant एकदम बड़ा हो जाता है and, you know, sort of, you know, throwing everything at them, then they are like कि I think Encore का डायलॉग था वो कि काम का डायलॉग नहीं, I think Encore का डायलॉग था कि time for like the Gauntfire duo. तो बस yo
I loved this concept. It was so. Let's just go back a little bit. थोड़े बहुत visuals देखते हैं. This song, oh, I'm so impressed. जो भी animator है, जिसने भी direct किया है video, जो इसने भी concept सोचा है, fantastic. Let's begin थोड़ा सा. बंदे नाम चीन सवा शेर गरजरात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो हक खैर. It's पहली बात तो ये जो ड्रेडफुल वाला जो ये साउंड है, इट्स साउंडिंग अमेजिंग मतलब लिटरली इनके ऑनकोर एंड काम both throw in their flows so differently, and the synergy between these two is just amazing. तानसेन ढाया खैर मिले पहली ऑनकोर तो लग रहा है अभी मतलब है वो हक खैर. बंदे क्रांति बंदे नाम चीन सवा शेर गरजरात दिन जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो हक खैर. बंदे क्रांति बंदे काम पूरा तलवार लेके काम इज तो नेवर काम. वो तो मैंने मतलब नानचाकू में भी बोला था, काम इज नेवर काम. मेरे पहले पर चाहती नाम वो हन्नों बेटा चौकड़ी मार के 2-3 छोटे जला मेरी. And I love कि ये जो about this video that there are Nubro, ये जो मेन विलन है न्यूब्रो, एंड इसके थोड़े बहुत डायलॉग्स है. देन काम एंड ऑनकोर दे हैव देयर ओन डायलॉग्स, जैसे वीडियो गेम में एक होता है. सो देयर इज दिस स्टोरी लाइन ऑल्सो गोइंग ऑन. यू हैव अ वीडियो गेम ऑल्सो, एंड देन देयर इज द सॉन्ग. सो ऑल ऑफ इट कमिंग टुगेदर हैज जस्ट मेड दिस फाइनल प्रोडक्ट जस्ट एपिक. दैट्स व्हाट आई मीन टू से. न्यूब्रो आके मेरे शो की बात थी बहुत भीड़. मैंने पहले बार मैं जानता नाम नहीं, उसे लगा उसे बहुत पता. फिर प्लीज मुझे जान. तो ये सब छुट्टू-मुट्टू विलेंस है. क्यों करूं फाइट का बंदोबस्त. हमेशा दोस्त पी रहे चाय की, हमेशा दो टी रहे पैक में. नूबड़ा तो नूब्रो से नूबड़ा हो गया. हाँ पी रहे चाय की, हमेशा यू काम तो एकदम तलवार लेके एकदम चिल्ला रहा है उसके ऊपर. क्या उसे पसंद मेरा बैंड या ड्रिप या हाइप का दिल या वो 6-0 पैक में. तब अलग ही तो बचपन में हम वीडियो गेम्स खेलते तो उसकी याद दिला रहे. सो नाउ सो यू सी दिस विलन सॉर्ट ऑफ गेटिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं. पहले तो एक आध विलन ही थे मतलब जो उनके अगेंस्ट थे, बट देन ही स्टार्ट्स गेटिंग अ लिटिल बिट अफ्रेड, एंड वो पूरी अपनी आर्मी को भेज देता है कि जब जाके सब एक साथ जाके उन दोनों को अटैक करो. So it's like sort of like them telling that okay they have faced so many obstacles basically, but they've punched their way through it or sliced or shot. What a beautiful visual. Encore is like you know what to do. Encore तो पूरा मतलब एकदम बॉलीवुड का हीरो बन के गन लेके too good man. बोर्डिंग पास का मगो चाहिए था 50 मैंने भेजा 1.5 या लेटा खुद के पेपर में करूं मैं बेक. खुश थी खाली करी पूरी काम is not काम. करी सारे साथी भंडो के गए. हेरोसी का पड़ोसी मेरे तंगों के सोए. कोई दोस्त लेकिन मैंने कभी मौका. So press X. So I'm guessing X मतलब खत्म टाटा बाय बाय. हाँ कोई किल से something like that. जिनसे मेरे खाली लाभ से पदी बॉय. बंदे नाम चीन सवा तो भाग गया. जैसे तानसेन ढाया खैर मिले पहली बार पर पहले जानती है वो. I love how there's this dialogue also. हुए 4 साल और ये जो मतलब ये जो नामचीन वाला ये जो हुक है, I really like how they have harmonized. एक का लो पिच और एक का हाई पिच. That's also really nice. पहले जानती है वो खैर. बंदे क्रांति बंदे नाम चीन. हुए 4 साल लेकिन के नहीं पता रहता कौन सा दिन है. हर दिन जैसे वीकेंड मना रहे गाने फिर मारते चिल है. गाने मेरे बिल तो नहीं खाता गिल्ट है. हूँ मैं बहुत इल है ये मुझको इल्म है ये गान चाटने की करते एक्टिंग. तेरा भाई इनकी बनाता फिल्म है. दोनों भाई मिलके बनाएंगे मिलते इस पर नोट रहे जेब में नहीं चढ़ते सिर पे आकर रुक कार और आके फिर ले इन रैपरों के छिलके निकाल के छिल दे आकर आगे. So जो भी ऑपोजिट में are the from their industry only, like from the hip hop industry only, जिन्होंने obstacles create किए इन लोगों के लिए. It could be the fellow rappers also, or it could be somebody else as well. जो scene से है, but maybe not a rapper, but belonging to the same hip hop scene. Could be a producer or anybody. मारपीट लौंडों से घंटा नहीं लिखा जा रहा. फिर बोले हमें रैपर नहीं हम मैं आर्टिस्ट. बेटा तू रैपर नहीं तो डर मत. तेरा भाई माइक्रोफोन पे नरभक्ष जिनके खुद के जाता सरकट. उनको ही लगती कोयल करकश. सीधे मौत सब कर रहे हैं सरकट. तभी बदनाम भी सीन में काफी लेकिन कभी नहीं मांगी इजाजत तो मेरे घंटे से मांगे माफी. They're like नाम है बदनाम तो है
Big deal. I love this part where the final he becomes a mutant. Though I do want to know what this reference could be कि मतलब कुछ ले लिया तो जाके वो एकदम एक mutant बन गया तो I don't know. ये तो सेकंड टाइम लिसन तो बनता था इसमें मतलब मुंह फाड़ के वो हंस रहा है और ऑल दैट टाइम फॉर गान फॉर कॉम्बो आई लव द ऑनकोर का डायलॉग था देन अगेन प्रेस एक्स तो एक्स इज लाइक द फाइनल थिंग ये जो फ्लूट यूज किया है ना इस बीट पे आई डोंट नो आई विल चेक हु प्रोड्यूस दिस बीट जो ये बीच बीच में जो फ्लूट का यूजेज है ना इट्स फैंटास्टिक इट्स ऑल रेड रेनिंग रेड दिस सॉन्ग कंप्लीटली डिजर्व्ड अ सेकंड लिसन लेट मी जस्ट सी हु प्रोड्यूस्ड दिस बीट ये जो फ्लूट बीट है ना आई लव दैट It's produced by Calm only. Oh, fantastic. And video and artwork, Anubhav Goswami. It's a chef's kiss. Brilliantly done. Brilliantly done. This song absolutely deserved a second listen and third, fourth, fifth. Kitna, matlab, the song is so heavy to your ears, but the video is keeping you so engaged. And I think for a song like this, स्पेसिफिकली ये क्योंकि इसका बीट थोड़ा सा यूनिक है एंड इसमें जो फ्लो है ना दोनों का ही एंड द काइंड ऑफ केडेंस दे हैव यूज्ड इट्स प्रिटी यूनिक द सॉन्ग माइट नॉट बी एवरीबडीज टॉप और एवरीबडीज फेवरेट सब शायद जैम ना करे इससे बट इट इज़ सो स्मार्ट ऑफ देम टू मेक अ वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग बिकॉज देन द वीडियो कीप्स यू सो एंगेज्ड एंड ऑटोमेटिकली उससे क्या होता है ना गाना आपके दिमाग में रजिस्टर होने लगता है बिकॉज यू वुड वॉन्ट टू सी दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स एंड देन धीरे 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 व्हेन द वीडियो स्टार्ट्स रजिस्टरिंग इन योर हेड subconsciously the song will also start registering in your head. That's when you pick up the actual uniqueness of the song. But the beat for me, I think the flute thing was completely unique. I love that. I love the integration here. Them harmonizing both Encore and Calm with the low and the higher pitch. That was great. It's a very unique song for me. I think अभी तक इस mixtape से तो 4 गाने हो गए. ये वाला गाना सबसे ज़्यादा अलग लगा मुझे. Considering this entire mixtape अभी तो और बचे हैं this is the second song अभी 5 more songs are left for me to watch but I think in terms of the unique factor कुछ हटके मैंने सुना I think it's this song it's definitely this song so yes those were my thoughts on Namcheen we will move on to the next track which is the 4th track जो है नानचाकू जो मैं react कर चुकी हूँ then moving on to the 5th track from this mixtape is नादान इसका भी वीडियो है उसके बाद है नटखट का भी वीडियो है और बाकी जो लास्ट 3 है उनके वीडियोस नहीं तो वो सिर्फ ऑडियो है जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है थंबनेल्स पे ओके लेट अस मूव ऑन टू नादान लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग व्हाट दिस इज अबाउट ओके इसमें सबटाइटल्स हैं हाँ ओके ये प्रॉपर वीडियो अकेले में जो पकड़े सुर What? वो जो ढूंढे है वो नहीं एक मिनट काम ने तो झटका दे दिया मुझे दोनों नहीं अभी तो ऑनकोर का वर्स आया नहीं बट ओके दिस इज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गाइज ये वाइब तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी आई एम गोना रन दैट बैक अगेन Okay, wow. I'm intrigued now. So is Calm gonna be calm in this song? वो अकेले में जो पकड़े सुर वो जो ढूंढे है वो नहीं यहाँ बताया गया है वो चीज वैसी की उसके लिए या कोई जगह नहीं है पर मैंने वो ठोस छोड़ तो है नहीं कोई
छोड़े वो जाए खुद को ढीठ होके गई ऐसा नहीं देखा अंदाज और ऐसी नहीं सुनी आवाज ध्वनि तुम्हारी कुकू जगो तो है कोई हो के करता सी सच है तुम्हारा झूठ हूँ मुझे बसा लो खुद में बना लो खुशबू ऐसे बहाने बनते कहूँ तो सच तो रो तू है नहीं कोई तेरा एक दोस्त यहाँ पे है बातें बनाने में 100 लोग यहाँ पे है हर रोज एक नया मेहमान तू खो रही है अपनी पहचान दिल में तू रखे है राज क्यों बिखरने देने आज तू वो बस तेरे जिस्म खो गए कब की हो गए मारा तुझको टुकड़े हो गए है तू कैद वो तुझको रोके बच के निकले फूके जोटे स्पर्श Amazing. से तू प्यार के तोहफे चल संभल के हर कदम पे दर्द प्रचंड है लेकिन न बदतर नहीं अकेले में ही सहा लेकिन किसी से न कहा पिटने वाली उसने करी कोई हरकत नहीं पर थकी हारी है बैठी कैदी सी अंदरूनी बातें पाती सह भी नहीं नशे और म्यूजिक लाओ बैठी है वो सहमी सी नादान है पर है कायर अकेले में जो पकड़े सर कुहू वो जो ढूंढे है वो नहीं यहाँ बताया गया है वो चीज ऐसी की उसके लिए कोई जगह नहीं वो ठोस छोड़ो तो है नहीं कोई दोस्त तो तेरा मन करे तुम्हारे दो नीड छोड़े बचाए खुद को ढीठ होके गई ऐसा नहीं देखा अंदाज The backing vocals are incredible. Both looking at opposite directions. I was saying that Namsheen was very unique and unexpected. I wouldn't say in terms of song it is still the most unique one, but this side of Seedhe Maut, I mean I didn't know this existed also. Oh my god. मतलब शॉक वैल्यू में तो इसने मुझे ज़्यादा शॉक किया इवन दो ऐसे टाइप का गाना मैं सुनती हूँ आई लिसन टू इट सो इन टर्म्स ऑफ द arrangement of the song it's not different from the songs that I generally listen to, but I think this shocked me the most. Wow. Oh, this album took a completely different turn, huh? Nadan. Both of them sing so well. I did not know this. It's just beautifully done. I love the singing voice and encore ने जब फिर अपना rap start किया, it was so well done. And the lyrics, okay, I'm just saying random things. Wait, एक एक करके. Their vocals, पहले तो vocals की बात कर लेते हैं. Like I said, I did not know that they sing so well. Both of their singing voices are really nice. I don't know वो जो backing vocal जब जब hook आ रहा था, जब वो chorus वाला part आया, तो वो because काम ही गा रहा था पर backing vocal भी था. So I don't know if he only was sort of harmonizing with his own voice or was it encore. Then when Encore sang and then he started rapping, it was fantastic. I loved their vocals here. There was a sense of dread also and sadness. This is a sad song.
तो वो जिस तरह से वो लोग का अगेन विद देयर केडेंस, इस गाने में भी देयर इज दिस इनेट मेलनकली दैट आई फेल्ट. ऑफ कोर्स द वीडियो भी वैसा था, एकदम ही काम डाउन एंड वेरी वेरी स्लो. दे आर जस्ट वॉकिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. ये वीडियो में एग्जैक्टली वही था. एक तरफ से दूसरी तरफ, एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे वो लोग. एंड एट द एंड ऑफ कोर्स देम सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड ये जो नादान जो जिस चीज़ को बोल रहे हैं, व्हाट आई गॉट इज़ कि वो अपने मन की बात कर रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक मोर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज देम शोइंग देयर वल्नरेबल साइड. दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज देम शोइंग देयर वल्नरेबल साइड. एंड द लिरिक्स आर सो सैड. वो अलग बात है कि मैं देख के मैं तो अपनी पूरी बत्ती सी फाड़ रही थी because of the beautiful shock that I got with this song. But otherwise, I know like it was like I got the feels. I did get the feels. But वो अलग, maybe my expression was betraying me the way I was feeling. But I think I was more happy to find this kind of vibe from Seedhe Mauth. I did not expect. Like this was the last thing I was expecting, that this song will have this kind of vibe. So I think that really impressed me. I'm very impressed with their singing voices. Let me see who wrote the song. Let's just go to the credits. Amazing, man. Amazing. I'm so happy they've crossed. क्योंकि मैंने जब नमस्तुते रिएक्ट किया था तो उनके 194K सब्सक्राइबर्स थे. So I'm really happy that I'm seeing it's crossed to 100K. So many more to gain. Many more to gain. ये गाना okay, written by them only, and it's produced by Calm. My God, he's a great producer, huh? Like the range and the variety that I just witnessed in 5 songs, it's unbelievable. Wow, amazing. और ये गाना वैसे रिलीज कब हुआ? Wait, this just premiered? Okay. Fine, चलो. Okay, so this is like a very new song. तो झटका लग गया होगा सबको. I want to know what was it. Okay, guys, I want to know because this like came in last month only. So I definitely want to know. और I think नानचक उससे पहले आया था. तो उसके बाद जब ये रिलीज हुआ, what did you guys think? Feel? I definitely want to know कि जब नादान अपने, but I think गाने तो पहले ही आ गए होंगे. गाने I'm guessing पहले ही आ गए होंगे. You would have listened to the mixtape before only. But I just want to know, the first time you listened to Nadan, what was your reaction? Like, were you as shocked as I am at this moment? Please let me know. So fantastic. Oh my God, it's going to be so difficult to rank. Okay, no problem. अब next गाने पे move on करते हैं, which is Natkhat. नादान और नटखट. So let's see ये गाने का vibe कैसा है, because I think this also has a video. और ये अच्छा, मतलब ये भी सितंबर में उन्होंने रिलीज़ किया. ये ओके, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये भी स्लो गाना है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे. लेट्स सी नटखट. सी नादान भी ऐसे ही वो ओपन हुआ था. ओके चेक ऑन. और टाइम क्या हो रहा है? टाइम बता बहनचोद. है बिल्कुल भी स्लो गाना नहीं. So horrible with my guesses today, huh? Usually I guess pretty accurately, but okay. चेक ऑन. और टाइम क्या हो रहा है? Okay. Well, this is more like a naughty song. Natkhat. है इसी बीट की शुरू से लगा लेने में सभी को जगह मेरे पे ना तो सर के खाने बिचारे वालों का प्यार भी यार जो सारे हिटर है. बड़ी नहीं कमी हिटर की, पर मुझे चाहिए एक और हिटर. एक और जीतो करूँ टेक ऑफ देकर अगर चेप और होगा तो चेप पर क्या करे छे दौर करूँ तेरा व्यापार करा तो पर मैं सीधा क्यों नहीं पूछूंगा पापा कौन है, बस पहलेंगे दोनों बॉडी में सोचेगा पर तू कैसे न कैसे बोलेगा सोने भी रहने. He's insane, man. जब देखूं वहाँ लगे हुए 6-7 कैमरे रहने. एक और एक 11 चले 2 पैंट दोनों भाई प्लान पे पूरे टाइम भरी रहे पूरी वो एस्ट्रे. तभी भाई
मत दे मेरी मिसालें बोले कि मेरा बच्चे बिगाड़ मैं बस पूछूं सवाल दिल पे लगे तो करते बवाल मैं नहीं करता वकालत इंस्टा नहीं है आपकी अदालत वालत करे ना बाप से बगावत ले सलाह रे सलाफत बिगाड़े तबीयत फटाफट जो मारे ताने फटाफट मेहनत के बाद लबालब पैसों की बारिश छप छप नहीं है कोई हमसे बड़ा सख्त ना है कोई तुझसे बड़ा फट तू घूम लेकिन बात को घुमावत ना कम टॉप टू बुरा मन बुला मत एक और दादा एक और चाहिए चिप और एक और वजह एक और चाचा एक और चाहिए चिप और खाता एक और वजह एक और चाहिए एक और वजह खर्चे एक और मस्ती चाहिए एक और हम जो बड़े पीस चाहिए एक और भूखा हूँ पेट चाहिए एक और पेट भरा पेट चाहिए एक और पूछते हैं जीतेगा कितना बोलता हूँ चाहिए मुझे मोती यार चढ़ी छोटी यार और अगली चेन उठाऊंगा जो होगी वो मोटी यार ना करी छोटी यार ये कलोड़ी यार पैक वो बड़ा लेकिन ये गड्ढरी थोड़ी यार ने चाहिए धोखे यार तो चले डोकी यार पूरा महीना भरा लेकिन ऊपर चाहिए दोगे कौन ये करे नोटिस और 14 शोबिस और अपनी बचे ज्यादा कुत्ते जो यहाँ भोगे और उनको खा जा हम बोलते हैं कौन है फेवरेट रन पे फेवरेट बास्केट फोन पे से बोलते जेल पे ठापना मुश्किल बात को नहीं स्टाइल सेल पे तेरी बीट Oh, man. हाथ पे खेल आराम से पेलते हाथ की फील ले कुछ चट्टान पे कील तो शब्द पत्थर की लकीरें दूर तुझे फक भी फ्री में डरू बकरा ईद तेरी चक्रा वी के मेरे हेटरों को सुबह 15 फीट से फिर दूर से फेंक के मारू अगला गीत है मेरे हाथ में ईंट और हम तेरे टीथ पे डाले आग के घी में पर मैं आग को घी में फसाद की जड़ू तेरे फैमिली ट्री के बोले जो है जी में अगर दम है जी में मुझे सुने शक्ल ऐसे की जबाली नी मैं ये नहीं हाई फील्ड है एक और दादा एक और चाहिए चिप और खाता एक और वजह एक और चाचा एक और चाहिए चिप और खाता एक और वजह एक और चाहिए एक और वजह खर्चे एक और मस्ती चाहिए एक और हम जो बड़े पीस चाहिए एक और भूखा हूँ पेट चाहिए एक और पेट भरा पेट चाहिए एक और पूछते हैं जीतेगा कितना बोलता हूँ ये भी बीट काम ने प्रोड्यूस किया है क्या? ये भी अनुराग शर्मा ने किया है डायरेक्ट। पहले तो ये बीट okay, so much going on in all of their songs, huh? Produced by Calm. My God, this beat, ये जो classical वाला ताल दिया है ना, तुम तक, oh man, so unique. Once again, guys. मैं एक ही चीज़ बोलना नहीं चाहती बार बार, but I have to say it because it deserves that appreciation. Firstly, Calm, he is so freaking talented, man. This beat is unbelievably good. और ये वाले गाने से ना मुझे वो No Enema की याद आ गई. Once again, because इसमें भी what I realized is that the beat did not change at all. At all. It was their flow switches that was just making this song unique. The beat was same. देखा, नो एनिमा के टाइम में भी इतनी तेज बादल गरजे थे और अभी भी. So the Thunder God actually loves these kind of songs is what I'm assuming. That was a horrible joke. Anyway, this beat was just fantastic. तुम ताकि तुम this ये जो पूरा ये एक ताल मतलब बीट का तो टेम्पो है ही है, बट हर एक मतलब जिस तरह से वो टेम्पो जा रहा था, यू हैव अ ताल as a reference to the beats. My mind is getting blown away right now. Dude, this is some next level production in terms of producing the beat for the song. I'm just taking it in. मतलब I'm just sort of rearranging my thoughts in my head because there's so much to say. तो मैं थोड़ा सोच के बोल रही हूँ.
this song again, brutal when it comes to lyrics. Beat का तो मैंने बात कर लिया. When it comes to lyrics, I love the rhyme scheme in this particular song particularly. सारे गाने में है rhyme scheme, but इसका मुझे ज़्यादा मतलब खुल के सुनाई दे रहा था. It's really nice. It was really really nice. Third are their flows. I think मुझे तो लगता है मैं हर गाने में बोलने वाली हूँ. मुझे तो लगता है मैं हर गाने में बोलने वाली हूँ about their flow and their cadence. मुझे तो फ्लो तो इनका है ही बढ़िया, बट somehow the way they modulate their voice and जिस तरह से वो अपने verses गाते हैं ना, it's something that is so incredible because एक गाने में ना कभी भी वो एक टाइप की तरह वो अपना वर्ड्स थ्रो नहीं करते हैं. It's always something very different because if you the way Kam started the song, his voice was really powerful. The way he was throwing in the lines, the verses, the bars, it had a punch to it. फिर encore आता है. I'm just talking about Kam का verse. Then encore comes in. Then the next verse which Kam sings, it has such a, like, he's singing in such a mellow way. The way he sang his first verse and the way he sang the second verse, it was such a ज़मीन आसमान का फ़र्क था. So I think in the flow तो मतलब I feel the Kam is another level. I don't know why. I mean, oh, sorry, मैं थोड़ा ना एकदम dazed हो गई हूँ ये गाना सुन के. So if you feel like कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है, understand that I'm literally like, I'm blown away by this song. By the way, guys, I'm blown away by the song. So then the same goes with encore. The way he's modulating his voice, his pitch is, I love his deep voice. Encore ka, I think second verse mein his voice went a little bit deeper, and then the flow he changed. Encore का slow वाला verse मुझे अच्छा लगता है, but the way he switched it up at the second verse which he was rapping, oh man, what a song यार. This actually मुझे एकदम No Anima वाला वो feel आया, because where the beat was completely constant and it was just flow switch, cadence में switches. Too good. And hook के बारे में तो बात करते हैं. It just added that extra edginess to the song. Yes, गाना वो बहुत ही edgy है. तुम already ये जो ताल दिया है उसकी वजह से गाना already बहुत edgy लगता है और बहुत अलग लगता है सुनने में. उसके बाद their flow of course great, and then the hook comes in जिसमें उन्होंने अपना voice engineer करके उसको और ज़्यादा, मतलब there is this weird monstrous ghost kind of feeling, but it's just weird, you know. That's the feeling that you'll get कि okay, ये थोड़ा सा अलग ही zone में चला गया. The way they've engineered that voice to make it sound अजीब type का थोड़ा सा, so that made the song even more edgy, even more edgy. So I loved that. All the songs are so different from each other in this album. This is a freaking bop mixtape यार. अभी तो 3 गाने और बचे हैं, right? And हाँ 3 और बचे, नज़र बट्टू, freestyle, नफरत and ना जाए. What I have to say particularly about this song, at least क्योंकि 6th song है इस album का, इस mixtape का, is that every song, बस ये और No Anima, of course दोनों गाने अलग अलग ही है, beat अलग है और everything अलग है. I'm saying in terms of मुझे similarity लगा कि जैसे beat constant था और flow में switch था. That is the only similarity I'm talking about जो No Anima नटखट में मुझे मिला. But otherwise, in terms of the vibe and the feel, all the songs are so different from each other. And that's what I am concluding, is that Kam is a freaking amazing producer. He's an amazing producer. Rapper तो है ही अच्छा, but I think I'm getting more impressed by him as a producer. So yes, that was Nutcut. Wow. Hello. That was nice. Okay, moving on to the 7th track from this album. This is Nazar Bhattu Freestyle. देखते हैं इस गाने में क्या है. This is like audio. चलिए सुना जाए इस गाने को. ये जो
एक मिनट, उनको देखने दो, ये काम ने ही प्रोड्यूस किया है क्या? काम ने प्रोड्यूस किया है. पेरेंटल वार्निंग, एक्सप्लिसिट लिरिक्स. ओ नो, ओ नो. Am I gonna go to the uncomfortable zone? चलो स्टार्ट करते हैं. Go. The voices he used. क्या हाल है जानी, ठीक हो? आओ तो बैठो सुनो फिर कहानी. है डेयरी फार्म वाले लौंडे की जबानी, जेबों में है पैसा फिर भी रखते लौड़े पे अंबानी. क्यों? क्योंकि अमीरी है इतनी बड़ी चोट जितनी है नहीं गरीबी. गरीब कहीं से रोटी ला रहा तो फीकी, फिर भी तीजी रोटी उसकी लेके जा रहा अमीर ही. कैसे? वो बोले उसको टैक्स है, काला पैसा ऑल फैक्ट्स नो कैप्स बेब. इलेक्शन का प्रोमो मनी सोशल. Oh, is it a diss to the system? Okay. Oh, I did not expect it. Once ये mixtape तो मतलब अलग ही है पूरा. क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? I'm gonna run that back again. ये टक 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 जो आवाज आई, this is a really well produced beat. आजा. क्या हाल है जानी, ठीक हो? आओ तो बैठो सुनो फिर कहानी. है डेयरी फार्म वाले लौंडे की जबानी, जेबों में है पैसा फिर भी रखते लौड़े पे अंबानी. क्यों? क्योंकि अमीरी है इतनी बड़ी चोट जितनी है नहीं गरीबी. गरीब कहीं से रोटी ला रहा तो फीकी, फिर भी तीजी रोटी उसकी लेके जा रहा अमीर ही. कैसे? वो बोले उसको टैक्स है, काला पैसा ऑल फैक्ट्स नो कैप्स बेब. इलेक्शन का प्रोमो मनी सोचो नहीं कहां से आ रहा है, क्या या दो वोट या फिर वोट तो नहीं. खैर हर एक दिन और हर एक वक्त से बैर, हरामे आमे लाने वाले लौंडे होते हैं गैर. संविधान बदलना चाहने वाले बोले खुद को देशभक्त. इनकी ईगो ट्रिप में भरा मेरा देश रक्त. भिड़ेगा चौंसा होके जाएगा बेइज्जत. मैं खूंखार पेशकश कलम तोड़ दे तक. हाथों के दम पे साइकिल लेके चांद पे, एक लैंस और एक नील मेरे दोनों आर्म स्ट्रॉन्ग हैं. Oh, nice. वो बोली आज ही, पूछा उससे जब मैं मुझसे कब करेगी शादी. राजधानी वाले लौंडे रहे हमेशा राजी, और जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी. था कभी नहीं खुश, अब हासिल से पढ़ना जाने को चुभे. देता नहीं किसी को टाइम और अब मित्र पुराने पे छाने ना मुझे. स्वार्थी थोड़ा मैं आंखों में तेरी तो मुझे क्या मचुदा चुम में करूँ जो लगे सही. मुझे ना सुनी किसी की ना सुनूंगा आगे, मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ. तिलक न गढ़ से जी क्यों या बढ़ती जिम्मेदारी, पर मैं रहता ठीक हूँ. है खाते खुद कमा के किसी के पप्पा कहानी, और अब कम नहीं पड़ता हम पे कब भी खाना पानी. अब मेरे पे भाना था नहीं, ना बोलूं मैं खुद को झूठ, तब मेरे में था नहीं डर. अब सोचो मैं जाऊं ना डूब, कोई मारा नहीं तीर उखाड़ा नहीं झाट की बोलूं मैं गो टू. पर अभी टाइम है, कभी तो समझो कभी को ढंग से. कमी तो हम में लिखा नहीं मैंने, जो सुना था उनको पढ़ूं मैं. लोग करा था मैंने भी बैटल में शो, हिचकिचा के करे थे शोज. अब बिग पे नान से शुरू में शोर, हर एक आवाज है मेरे लिए कीमती. बड़े स्ट्रीम्स अगर में चेन भी कहां थे 4 अब 10,000 गए सीधा हाइप बढ़ा के मेन स्ट्रीम. वो बोली आज ही, पूछा उससे जब मैं मुझसे कब करेगी शादी. राजधानी वाले लौंडे रहे हमेशा राजी, और जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी. Nice. Wow, yeah, mixtapes is literally surprising me. Once again, I'm just going to repeat what I said. Kam is such a great producer. Kam is such a great producer. इतना भी explicit, चलो इतना explicit का तो आदत है मेरे को. But who wrote this song? Composer is Siddhant Sharma. Lyricist Abhijay Negi. Okay. All right. Not bad. But okay. Just amazing. पहली बात तो I did not expect it to be like a diss to the system in general. To his surroundings. Basically ये जो गाना है जिन्होंने लिखा है, दो लिरिसिस्ट है एक्चुअली, आई एम सॉरी, अभिजय नेगी भी और सिद्धांत शर्मा, दोनों ने मिलकर गाना लिखा है. दोनों ने मिलकर लिखा है. आई फील कि
ये जो उसने पूरा अपना सिचुएशन बताया अपने आजू बाजू का, दे आर फ्रॉम दिल्ली राइट, सो Delhi NCR, I don't know where exactly in Delhi, so I'm guessing mota Delhi NCR is where they belong to, and it's like they saw what is happening around them and they have just penned it down. So it's like इस गाने में अगर the way they have rapped in the song, you will not feel कि बहुत ज़्यादा aggressive है ये गाना. ये aggressive नहीं है. The way they have thrown in their lines, इनका flow वगैरह जो भी है, गाने का एक जो vibe है and जो feel है, it's mostly like a mockery. It's not aggressive. इसमें वो गुस्सा नहीं निकाल रहा है, इसमें frustration नहीं लग रहा है, इसमें वो होता है ना, मतलब यू आर लिटरली लुकिंग अराउंड एंड यू आर लाफिंग, मतलब वो सर पकड़ के बैठ जाना, ये फील आ रहा है मुझे गाने के साथ. एक होता है ना जिस तरह से आप गाना गाते हो या रैप करते हो, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द रैपर और द आर्टिस्ट. हियर आई फील द माइंडसेट ऑफ द आर्टिस्ट इज लाइक, मैंने इतना देख लिया है ये सब होते हुए अपने आजू बाजू में, आई एम ब्लडी नम टू इट एट दिस मोमेंट, बट आई एम लाइक लिटरली होल्डिंग माई हेड एंड जस्ट सेइंग. वो होता है ना जब सर पकड़ के आप जस्ट बोलते हो अरे यार यही जब चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है. दिस इज द बेसिक इमोशन दैट ही इज रैपिंग विद. This is all my interpretation. This is my interpretation. Obviously, you guys can have a very, very different interpretation, which you can definitely, type it down in the comments. Once again, as a producer, जब ये beat start हुआ था, ting glasses का जो clinking होता है and all of that, so many different sound effects that he has put. And then end में वो, I think that's जो guitar से उसने जो end किया, very like the beats he's producing is हटके. That's the word which is coming in my mind, hatke. Anyway, so that was the 7th track from this album. Now moving on to the 8th one, which is Nafrat. Okay. Nafrat सुनते हैं कैसा है ये गाना. वो करे नफरत कभी नहीं संदेह, वो करे नफरत कभी नहीं संदेह. Oh, the beats are so good. वो करे नफरत कभी नहीं संदेह. तेरा नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है. उफ पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है. तेरे नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है. उफ पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है. उफ क्या लगता है, क्या रहोगे यहीं जब बुरा वक्त है, क्या रहोगे यहीं जब सूरज डूबता है रोज, और कहोगे वही जो मुझे चुभता है. बहुत है मैं 19-20, तेरे बिना रहने की भी कोशिश की, पर तेरे सिवा कोई नहीं समझा मेरा सीन. हाँ मैंने देखी जिंदगी भी बहुत, पर तेरे जैसी तू ही मिली मुझे, मैंने दे दी पूरी ताकत तुझे, बिना सोचे मेरा होगा क्या है. मैंने उम्मीद सौंप दी, तूने बदले में. I'm sorry, ये गाना टॉप पे जाने वाला है मुझे लग रहा है रैंकिंग में. Oh, the beat, this is like them rapping with melody. This is something that I really, really like. I really like melody rap. मुझे बहुत पसंद है. So, oh wow. I'm gonna add it. I'm 100% sure I'm adding this to my playlist. He just थोड़े dark, sad type गाने हैं ना. पता नहीं. I don't know why I keep vibing to them more. वो करे नफरत कभी नहीं संदेह. तेरा नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है. उफ पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है. तेरे नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है. उफ पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है. उफ क्या लगता है, क्या रहोगे यहीं जब बुरा वक्त है, क्या रहोगे यहीं जब सूरज डूबता है रोज, और कहोगे वही जो मुझे चुभता है. बहुत है मैं 19-20, तेरे बिना रहने की भी कोशिश. उसके बाद जो फ्लो स्विच आया वो तेरे सिवा कोई नहीं समझा मेरा सीन.
हाँ मैंने देखी जिंदगी भी बहुत, पर तेरे जैसी तू ही मिली मुझे, मैंने दे दी पूरी ताकत तुझे, बिना सोचे मेरा होगा क्या है। मैंने उम्मीद सौंप दी, तूने बदले में सीधे मौत दी। ये शब्द नशीले और जब को तेरी और उसे है पता तभी। नफरत कभी नहीं संदेह, तेरा नाम भी है कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है। उफ, पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है। तेरा भाई टूट के नहीं जुड़ता भरोसा है, धो रहा है नहीं अभी, जो भी होना हो जाए। मौत आया मुझे बस बोले पे भी होता है, सुसाइड तो भी रहे बटवा मोटा है। मेरा फोन मेरा प्लग दोनों मोबाइल, जिगरे में भाई तारी मोबाइल, तूने फिर टोका है उसे मेरी जेब पे भरोसा है। यहाँ बस साथ चले छोटा है, नफरत तू लेके कहाँ घूमेगी, जा मेरी शिद्दत का अंदाजा है नहीं तुझे, इज्जत का दौराना होता नहीं तो इल्म का यार। तेरे पीछे 3-4 दिए मार बार, तू भी मरे मेरी करे प्यार सीधे यार बार। लौटे साथ करूँ गैंग गैंग लेकिन लाचार ऐसा लेस करे। वो करे नफरत कभी नहीं संदेह, वो करे नफरत कभी नहीं संदेह। तेरा नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है। उफ, पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है। तेरे नाम पिया कम बैक ऑफ, तेरा दोस्त मेरे नाम पे उछलता है। उफ, पढ़ा मैंने तेरे नाम का एक पर्चा, मेरा नाम तेरे ज़हन में खटकता है। This song gets added immediately to my playlist. Oh, I love this. ये गाना, everything about this song, the lyrics, those sad heavy lyrics with this unbelievably dark, थोड़ा edgy dark वाला music है, you know, which I love. I really like these kind of songs where you have this edgy dark music, थोड़े से lyrics भी थोड़े heavy type के हो, and so many beautiful, the perfect, you know, mixing and the melody rap. This song gave me everything that I love in a song. I love the way it started, the way it ended, the flow switches, the melody, the feel. मुझे सब अच्छा लगा। This song for me is a 10 on 10. I think यही number 1 होगा। अभी तो last गाना बचा है, so we'll see what my preferential ranking is because I'm gonna listen to ना जाए now. But I think Nafrat definitely takes the cake for me in this album mixtape. ना जाए सुनते हैं and then I'll give you the final what I felt like for me, my preferential ranking. Again, you know what? It is their USP. बीट तो इनकी है ही बढ़िया, बट इनके बीट्स में ना, एटलीस्ट इस एल्बम में इनके बीट्स में इतने वेरिएशन नहीं है जितने इनके फ्लो में है। They really play with their flow. They really experiment with different flow switches. That's what I felt listening to this particular album right now. ना जाए सुनते हैं, then I'll give you my final thoughts. Okay. वो बोली चला थोड़ा धीरे आए, जिंदगी हम जिए साई-फाई, होता उसकी आंखों में वो साफ जाहिर जाए, थोड़ा धीरे आए, एक अंदर कीड़ा उसको खाए जाए, ठानी लिया जाना तो वो जाए जाए। ओए ओए ओए, उठ जा अबे उठ, अबे क्या है यार? चल यार चल रहे हैं। अबे भाई उठ जा, जल्दी उठ उठ रहा हूँ भाई, उठ रहा हूँ है अच्छा है सपना सोने दो, मैं भी साला वहमी मुझे खोने दो, होगी उसके लिए नई शुरुआत, पर यहाँ लगे आया सब खत्म होने को, बिना मिले मुझे अधमरा छोड़ वो, मैंने बोला मुझे मत पता कौन है वो, ऐसे 100 नाम भी होने जो, मेरा ध्यान है तेरे पे तू आगे सोचे जो,
तजुर्बा बोले पीछे पढ़ नहीं लाते, सच्ची बोलूं तो एक टेक्स की बात है, मिला क्या दूरी रहे मेरी रहे प्यार से, ये टॉपिक छिड़े और कभी छोड़ भी लंबी बात है, मिलना या मुश्किल है, हम चाहते जो फटू तभी मैं बातें तो बड़ी करी थी, ईगो पे लगी बातें तो पहले से ज्यादा करूं मैं, है नहीं जताने को कुछ है नहीं हराने को कोई, तो धूल चाट नाटे उड़े टूको जैसे तुको, जैसे लौड़े लोग पीछे छोड़े रुको, कैसे छुको ऐसे इतना की लूटो, ऐसे अपनों को थूको, ऐसे अपनों पे अपनी पड़ी बरसों से कहते। I'm pausing. Okay, this is जब उसको उठाता है, जब वो बोलता है कि मुझे सपने में रहने दो, from there the song completely shook me. Wait. है अच्छा है सपना सोने दो, मैं भी साला वहमी मुझे खोने दो, होगी उसके लिए नई शुरुआत, पर यहाँ लगे आया सब खत्म होने को, बिना मिले मुझे अधमरा छोड़ वो, मैंने बोला मुझे मत पता कौन है वो, ऐसे सोलू नाम भी होने जो, मेरा ध्यान है तेरे पे तू आगे सोचे जो, तजुर्बा बोले पीछे पढ़ नहीं लाते, सच्ची बोलूं तो एक टेक्स की बात है, मिला क्या दूरी रहे मेरी रहे प्यार से, ये टॉपिक छिड़े और कभी छोड़ भी लंबी बात है, मिलना या मुश्किल है, हम चाहते जो फटू तभी मैं बातें तो बड़ी करी थी, ईगो पे लगी बातें तो पहले से ज्यादा करूं मैं, है नहीं जताने को कुछ है नहीं हराने को कोई, तो धूल चाट नाटे उड़े टूको जैसे तुको, जैसे लौड़े लोग पीछे छोड़े रुको, कैसे छुको ऐसे इतना की लूटो, ऐसे अपनों को थूको, ऐसे अपनों पे अपनी पड़ी बरसों से कहते ऐसे बिच मूव, जनी देखा लौंडे के लिए बिग मूव, या आगे सी पिग लाए एक लू, उसने पहले किया नजरअंदाज, अभी स्टोरी डाले आईजी पे और ऊपर लेके बिग मूव, जिंदगी हम जिए साई-फाई, होता उसकी आंखों में वो साफ जाए, जैस गुस्सा क्या है, एक अंदर कीड़ा उसको खाए जाए, ठानी लिया जाना तो वो जाए जाए, मैं क्या बोला एग्जैक्टली, थोड़ा मैंने उसकी आंखों में वो साफ जाए, जैस गुस्सा क्या है, एक अंदर कीड़ा उसको खाए जाए, ठानी लिया जाना तो वो जाए जाए, जागी रह सोना मत, पूरी बात हुई नहीं, थोड़ा बहुत वक्त तू मांगे पर मेरी घड़ी में सुई नहीं, पूरी रात काम हाथ करे खाज, 100 के नोट से एक हथेली नहीं, कैसे पकड़ूं नंगे हाथ, तू बर्फ हुई नहीं, छुई मुई दुई नहीं, लेकिन सिर्फ तू ही सही, लेके लफ्ज़ छुई नहीं, भेजती है जैसे कील सुई नहीं, देखे फील कभी लगे मुई नहीं, पीछे हुआ जली तेरी लेकिन आई धुएं की बुई नहीं, यूं ही कहीं सोचे लोग करूँ मैं नील नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हूँ मैं नहीं छल्ला, ब्रॉल में तू बल्ला, थोड़ा बहुत हल्ला करूँ तेरे पहले मिली ऐसी कोई कोई नहीं, झूठ बोलूँ मौत आ जाए, दिल को रखा तेरे कंधे टिकाए, वही कंधे मुझे मेरी चिता चढ़ाई, धीरे धीरे तुझ में जलने में भी एक अपना मजा है, मैं अंदर रखूं एक समंदर छिपाए, तेरी बातों से शायद गर्म हो भी जाए, लेकिन जलो जितना गर्म अग्नि बुझा ही देता है, तू चले जैसे मैंने खाया है, लेके तेरे बात की कैसी माया है, मैं अपने से थाम लिए साथ एक रात पूछा होते क्या है बिच मुंह, सो बोला देख तू सोचे लोग चट तुझे होता है वो फेक, थूक चूम के लोग एक जू देते तुझे मैं मुंह, तभी प्यार की तलवार से कट मत तू आए आए, जिंदगी हम जिए साई-फाई, होता उसकी आंखों में वो साफ जाए, जैस गुस्सा क्या है, एक अंदर कीड़ा उसको खाए जाए, ठानी लिया जाना तो वो जाए जाए, वाओ, आई डोंट नो, ये सुनने के बाद मुझे आई फील अ लिटिल वियर्डेड आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बिकॉज दिस एल्बम just suddenly became so dark, huh? Nazar Bhattu say, like Nadan itself was very dark, but then I think Natkhat also was, I think Nadan onwards, it just started going in a very different zone, this entire mixtape. Because the way it started, if you go like sequentially, No Enema से जब start हुआ, then with Namastute and all of that, Nanchaku tak it's like punch, 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 punch. And then Nadan comes in, the interlude, it just completely snaps you out because Nadan के पहले वाला song is Nanchaku. ठीक है, and you are so pumped up after Nanchaku. जैसे ही Nadan आप सुनोगे, someone who listens to full albums, जैसे रिलीज होता है तो आप sequentially जब album में जाते हो, so whenever that interlude comes in and you are completely snapped out of this world and thrown into a different direction altogether. और उसके बाद ये outro आते
ना जाए, you are left with this heavy feeling. This is, पहले मैं ये stop कर देती हूँ. Let me stop the screen recording. This is like till the outro. Once Nadan starts, then Nutcut and Nazar Bhattu, Nafrat and Na Jaye. You मतलब वो होता है ना, उठा के किसी और ही डायरेक्शन में फेंक दिया आपको, ऐसा इस एल्बम ने किया. For me, personally for me, what you felt, you definitely share that thought with me in the comments below. I would love to read that. But this is what N Na mixtape has done to me at this moment. ये जो पूरा एल्बम है, full album is like a 5-course meal. सब कुछ अलग अलग, एक एक कोर्स आता है, अलग अलग मात्रा में आता है. And every, like from the appetizer till the dessert, it has given me everything. I got everything. Appetizer से start करके dessert तक. And dessert आते आते, I am feeling so heavy and so satiated also at the same time that it's a very difficult thing to express the exact kind of emotion that I'm feeling, because it's a mix of everything. It's a mix of everything. Of course, I'll not end up adding all the songs to my playlist because कुछ songs है जो मुझे, I think it will become a grower on me. जब मैं सुनूंगी, जैसे ना जाए particularly as a track, I was like, okay, it's pretty dark, but I don't know, man. Like, it's making me a little uncomfortable listening to it. जो emotion मुझे feel हो रहा है, probably listen to it 2-3 times and it will become a grower. वो होता है कुछ गाने जो आप सुनते हो तो it starts becoming your favorite, या पहले जो गाने आपको एकदम पसंद आते हैं, कुछ टाइम बाद you will be like, okay, I'm out of it. वो होता है हमेशा, that always happens. But with the first listen, this song, like I said, this album, what I told you, that it was like from appetizer to dessert, I got everything. Second takeaway for me from this album is that Calm is a fantastic producer. He's awesome, because what I understood is that he really experiments with the beats. He really, especially जब आप इंस्ट्रूमेंटल, सिर्फ बीट का इंस्ट्रूमेंटल सुनोगे, उनका वर्सेस हटा दो एंड सिर्फ बीट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ही इज़ यूजिंग सो मेनी डिफरेंट साउंड्स. बहुत ही ज़्यादा यूनिक इन टर्म्स ऑफ, हाँ, ठक 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 ठक, वो एक टेम्पो, चलो आपने शायद पहले भी सुना होगा, बट इफ़ यू लिसन टू द इंस्ट्रूमेंटल्स, दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस, इज़ दैट जो काम जो इंस्ट्रूमेंटल्स मिक्स करता है, अलग अलग साउंड्स को मिक्स करके एक बीट प्रोड्यूस करता है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई लव दैट. दैट्स अ मार्क ऑफ अ रियली गुड प्रोड्यूसर, दैट ही इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग विद द बीट्स. थर्ड takeaway for me from this album is that both Calm and Encore, Calm ने अगर एक beat produce कर दिया, you know, what I have got is that mostly the beats are, there are very minimal variations in the beats, and इनका जो flow है and जो cadence है, they are always superior. That is the focal point, ठीक है, and beat actually takes a back seat. यहाँ पे it's not, they are like, हम एक बहुत ही यूनिक बीट प्रोड्यूस कर देंगे and now we're going to concentrate on the flow switches and our cadence, because in one song they pack so much, both of them. और ये जो दोनों की जो जुगलबंदी चलती है ना, with the verses, one verse he throws, फिर वो you know कभी काम बोलता है encore, now take it ahead, फिर वो encore काम को throw करता है अपना, ये तो this back and forth which goes between these two, I really like that in this album. I really like that, except in Nunchaku, जहाँ पे तीनों आर्टिस्ट का अलग अलग वर्स था. स्टैन का अलग था, यू नो, ऑनकोर का अलग था, और काम का एकदम अलग था, और तीनों के वर्सेस में, तीनों के वर्सेस के फ्लो एकदम ही डिफरेंट, ऐसा लग रहा था 3 अलग गाने सुन रही हूँ मैं. So that was exceptional to Nunchaku, but I'm saying both of them doing that jugalbandi, it's fantastic. So that their flow and cadence is great. This is the third takeaway for me from this album. Fourth takeaway is that their singing voice, I loved it. Nadan was the biggest surprise for me in this album. I loved that song, very, very melancholic, and I love their singing voices, the harmonizing and everything. They know, both of them, they know, चाहे वो गाना हो, चाहे वो रैप हो, उन्हें पता है कि उनको किस तरह से अपना हारमोनी करना है to make the song stand out. That I really loved.
The fifth thing that this album gave me is that I feel even if they are underrated, from this mixtape I can say that, I mean, this is just the beginning. That's what I want to say, that this is just the beginning for them as an artist. Like I said, मैंने जब नमस्तुते किया था कुछ टाइम पहले तो 194 के थे, अभी 200 के क्रॉस हो गए हैं, which is great, and it's just gonna, you know, the family and the fan base is just going to increase. Sixth is that the creativity in terms of their arrangement of their lyrics and their verses. I really like that. Even though I don't get all the references first listen में, I think in hip hop में, भाई अगर hip hop में first listen में as an audience जो बहुत ही regularly hip hop सुनता है, अगर उसको सारे references बार समझ आ जाते हैं, then you are really freaking genius. But for like the average regular Joe like me, जिसको you know you probably need like एक रेफरेंस वीडियो, या फिर आप 3-4 बार सुनोगे तब आपको समझ आएगा. सो फॉर आई फील दैट इन टर्म्स ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ लिरिक्स एंड ऑल एंड देयर बार्स, आई एम नॉट बीइंग फुल्ली अप्रिशिएटिव ऑफ इट, बट आई नो इट्स गुड. क्योंकि जो भी राइम स्कीम ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है, इट्स साउंडिंग गुड टू माई ईयर्स. ओनली थिंग इज़ दैट जहाँ पे मेटाफर्स की बात आती है, विच I am not able to appreciate 100%, but I know it is there. I know it is there because आप लोगों ने भी मुझे बताया कि the way they write their lyrics, it's awesome. So even though I don't get it fully, I definitely want to appreciate that. Now, my preferential ranking for this was तो like a big surprise, हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद नमस्तुते नानचाकू ही टॉप पे रहेगा, but okay. Starting with the song which takes the cake for me, surprisingly, is Nafrat. I absolutely, the first instant में मुझे गाने से प्यार हो गया. I loved it. So for me, number 1, Nafrat for sure. Number 2, Nadan. Number 3, Namastute. Number 4, Nanchaku. Number 5, wow, now it's difficult to rank. Number 5, I would say, Namchin, for the reason that it's one of the most different, unique, जो uniqueness वाला factor है नामचीन में बहुत ज़्यादा है, which I liked. I know the song will probably go up in my ranking जब मैं इसको repeatedly सुनूंगी. I'm pretty sure on that. So Namchin. Number 6 is No Enema. What a great beat, man. I loved it. I freaking loved it. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. Number 7 would be okay, either Nutcut और Nazar Bhattu, दोनों ही मुझे अच्छे लगे. Number 7 would be, I'll probably keep Nutcut and Nazar Bhattu at the same place. Maybe ऊपर नीचे एक आध बार हो जाएगा, but I think generally at the same place. And the final one would be Na Jaye. Not that I did not like it, it's just that it's probably not my jam fully. So yes, those were my ranking, my preferential own ranking. I definitely want to know your top 5, top 3 from this mixtape. And yes, that finishes, let me remove this, that finishes the album listening for N Na by Seedhe Maut, Na mixtape. Loved it. Thank you so much guys for asking me to listen to this album. And the next album that I'm going to be listening to is going to be the new, because ekdam latest drop hua hai, Emmy Way ka album. So I'll listen to that. And yep, that was the reaction guys for today. I hope you have enjoyed this long video. I don't know kitna lamba ho gaya video, but I hope you have enjoyed this full video and have come till the end. Definitely share your thoughts in the comments below. And yep, I will see you soon now on my next video. Bye bye.